Namaste, Om Namah Shivaya, Param Pran Yog family, the global family of the world, my extended family, Namaste, Om Namah Shivaya. Welcome to Param Pran Yog PPY meditation. Yes, how are you all? Let join our family. Good. I can see that Abhishek has joined. Soita, Om Namah Shivaya, thank you for joining. Thank you for joining this meditation session. It's fantastic. Good, good. Very nice. Is my voice is audible to you all? It's perfect. Om Namah Shivaya, Sanjay Babu. Om Namah Shivaya. Very good. This time is perfect. After meditation, we can go directly to our bed for sleep. Yes. Before we start our session, let's listen this bhajan. I have select this bhajan for you all. This is very good bhajan and sang by Mukesh ji, and you would love to listen and listen the each and every word what he has sang. Om Namah Shivaya, Rishi ji, how are you all? And welcome to this PPY session, meditation session. Let's listen the music. Listen this bhajan. Welcome Amit ji, welcome Sanjeev ji, welcome Anjana ji. This is a beautiful bhajan I have selected for you we all. आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा. जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, gradually just come, sit silently and listen this bhajan. Beautiful bhajan. Welcome Prachi. मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमटी रे राम 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 राम. Listen each and every single word of this bhajan. I will repeat one more time for you all. Welcome Sadie, my loving sister from USA. Listen this bhajan, listen this kirtan. Once more. Once we listen this song again.
I think there is some problem. We'll listen this music again at the end. Now we'll start a meditation session. I'm working on this. Yes, today is the Nurse Day. The whole world is celebrating and focusing our intention on the service what the nurse people are doing for the entire world, for the entire humanity. This is really great for just to think of those people who are working day night for just to saving the humanity. This is beyond words. This is really beyond words. We also give them thanks and from our soul, and always pray for them for their betterment, for their better life. And as we express our gratitude for them, as we express our thanks for them, we attract a cosmic beautiful energy for ourselves. These two things are highly connected. How you are expressing your gratitude towards who is serving to humanity. In the process of expressing our gratitude for those people who is working day night for the humanity, for the suffering people, this intention, when you radiate from yourself, then what happens? You come closer to your basic unconditional being. So when you are coming closer to your basic unconditional being, then what happens? You are connected with the divine cosmic energy, which has the protection power, which can protect you, which can save you. This is the beautiful way to attract energy for ourselves when we express our gratitude for those to whom even you don't know personally and you are not even connected with them, but collectively the person who are working globally for saving humanity, really they deserve thanks. They deserve a good feeling for them. At least they must think that there are so many people on this earth who are thinking good for them. And while producing this energy through yourself, then what happens? You become the energy center, the energy power center, which is aligning with the universal energy, aligning with the universal force. तो क्या होता है कि when we radiate this energy, then we attract this energy from ourselves, from हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी कॉस्मिक एनर्जी ऑलवेज हमारे लिए काम करती हैं. हमारे चॉइसेस, हमारे डायरेक्शंस, हमारी लाइफ, हमारा हेल्थ, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन, हमारी सोशल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे कि यू विल गो इन अ कंफर्ट जोन, यू विल गो इन अ कंफर्ट बीइंग, जब आप अपने विदिन से ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ऑलवेज फॉर. खास करके आज का दिन चूँकि वर्ल्ड में ऐसा माना गया है कि आज नर्स को डेडिकेटेड डे है, तो हम लोग जरूर उनको एक वी डेडिकेट आवर मेडिटेशन टू दोज हु इज सर्विंग. और सर्विंग में सिर्फ नर्स नहीं है, सर्विंग में नॉट ओनली द नर्स, द anyone who is directly indirectly serving for the common life, they deserve this gratitude, whether they are security guard, whether they are helper, whether they are mason, plumber, your vendor, from where you buying any groceries, who they are opening the soap for whole day for you, who they are delivering each and everything to your doorstep.
साइलेंटली यू हैव टू थिंक ऑफ देम एंड पे थैंक्स. उससे बियॉन्ड और आप एक लेवल और अंदर जाएं. ये तो ये सारे लोग दिख रहे हैं, जिनका काम आपको दिखता है. यू सी देयर वर्क एंड यू रिकॉग्नाइज देम, बट देयर आर सो मेनी हिडन हीरोज जो जिनका काम दिखता नहीं है, बट वो हेल्प कर रहे हैं. और वो अगर एक दिन हेल्प ना करें तो आप हमें लाइफ को स्मूथली जीने में प्रॉब्लम आएगी. जैसे हमारा जो स्क्रैप स्पीकर है, जो कूड़ा वाला है, अगर आप एक दिन सिर्फ इमेजिन कीजिए कि वो नहीं आ रहा है तो आपके घर की स्थिति क्या होगी और पूरी सोसाइटी की स्थिति क्या होगी. प्लस जो खाना, जो भी अन्न हम लोग खा रहे हैं, जो घर में वी आर टेकिंग फूड, उस फूड का आप यू गो टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट फूड, जिन्होंने डेवलप की, जिन्होंने उसे उपजाया और आप तक पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट, सारे लेबर जो उसको लेके आए, फिर डिलीवर हुआ, फिर घर में जो खाना आपके लिए बना रहे हैं, आप बना रहे हो, चाहे आपकी वाइफ बना रही है, आपकी बहन, आपकी माँ, एनीवन हु इज कुकिंग फॉर यू, जस्ट थिंक ऑफ देम एंड से थैंक्स, थैंक यू सो मच. आराम सबको अच्छा लगता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे आराम अच्छा ना लगे, रेस्ट अच्छा ना लगे. एवरीबडी वांट्स रेस्ट, everyone likes the comfort and pleasure moment, but just for their responsibility to feed you, they are in the kitchen. और वो गर्मी में सारी चीज़ों को सहते हुए, देखते हुए, कोई कंप्लेन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. बट यस, सेलिब्रेशन के लाइफ में ऐसा नहीं कि हम उनको धन्यवाद देना भूल जाएं. तो स्पेसली उन सारे लोगों को आप सोचें, एक एक लोग डिटेल में जाएं, जो लोग भी आपके लिए अभी मदद कर रहे हैं या आपके जीवन जीने में जिनकी भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है, उनके लिए जरूर आप मन से धन्यवाद दें. और क्योंकि धन्यवाद देना, मैं बार बार ये कहता हूं कि गिविंग इज अ रिसीविंग. व्हेन यू गिव यू रिसीव समथिंग. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यू आर गिविंग एंड यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग. वेदर इट इज अ मनी, वेदर इट इज अ इमोशन, वेदर इट इज अ लव, वेदर इट इज अ हेटर्ड, वेदर इट इज एनीथिंग. आप हेटर्ड देंगे, आपको हेटर्ड मिलेगा. आप डिसरेस्पेक्ट देंगे, आपको डिसरेस्पेक्ट मिलेगा. आप लव देंगे, आपको लव मिलेगा. आप कुछ भी दें, आपको वापस में वो चीज़ आएंगी. तो अगर हम ग्रैटिट्यूड अगर कर रहे हैं, अगर हम उनको थैंक्स कर रहे हैं, तो वो थैंक्स की स्थिति हमें वापस आती है. और थैंक्स के सीरीज हमें वापस आते हैं. द सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सीरीज ऑफ मोमेंट, सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस व्हेन यू रिसीव द थैंकिंग मोमेंट. जिसको जिस वक्त आप थैंक मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और आप भगवान को या उस सोर्स को धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपने लिए कुछ दे के. गिविंग इज रिसीविंग. मैं बार बार कह रहा हूँ, गिविंग इज रिसीविंग. आप जब भी कुछ देते हो, यू रिसीव द सेम थिंग इन डिफरेंट फॉर्म, इन अ बिगर वे. आप बड़े रूप में आपको वो चीज़ें वापस आती हैं, है ना. जैसे कि अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी आप लाइफ में देखते होंगे कि आजकल एक टर्म चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेस हो रहे हैं. लोग उसको जा रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे और बेटर कर सकती है, जिसके बारे में परम प्राण योग पिछले 20 साल से हर वक्त ध्यान का पर्पस ही जॉय ऑफ गिविंग है. जॉय ऑफ गिविंग इज जॉय ऑफ बीइंग एंड जॉय ऑफ बीइंग इज जॉय ऑफ गिविंग. ये हम लोग की फिलॉसफी है और ये हम लोग का बेसिक रूट लेवल की आधार है. हम लोग का ये आधार है.
तो जब आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप यूनिवर्स से आपको वो चीज़ें मिलती हैं और आप एक अच्छा फील करते हैं, आप एक अच्छे जोन में होते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, एंजाइटी को कैसे कम की जाए, आपकी स्पिरिचुअलिटी इस पैंडेमिक में कैसे हेल्प कर सकती है एक स्पिरिचुअल लेवल पे, कि हम स्ट्रेसफुल कम हो, हम हमारे पास एंजाइटी कम हो, ये कैसे हो सकता है कम। तो इसका बहुत नॉर्मल सा जो कई सारे दिनों से हम लोग कहते हैं कि 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है: सेवा, सुमिरन, सेवा, सुमिरन एंड समर्पण, है ना। सेवा, सुमिरन एंड समर्पण। समर्पण को हम सत्संग भी कहते हैं, है ना, accompanied by highest truth। तो आप जरा सा भी स्ट्रेस आपको आता है, whenever you feel stress, anxiety और किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस आप क्रिएट फील करते हो, आपके हार्ट बीट बढ़ती हैं या यहाँ पे वेट ज़्यादा आपको लगता है, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होता है, पता नहीं अब क्या करें, क्या स्थिति होगी, सिर्फ 3 चीज करें, 3 फॉर्मूला, जो कि हम नहीं कह रहे, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ये हमारे विजडम्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल विजडम्स, वेदास में ये लिखे हुए हैं कि सेवा, सुमिरन एंड सत्संग। सेवा में जब आप अनकंडीशनली किसी के लिए काम करते हैं तो आपकी जो थॉट है, आपकी जो माइंड है, वो डाइवर्ट होती है। किस चीज में माइंड गेट्स डाइवर्ट? इन सेवा, डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, giving back. So when you're giving back, then what happens? Your mind is involved experiencing the pleasure within it. आपकी माइंड जो है, आपका जो मन है, वो इस पूरे कर्म में, पूरे कर्माज में एक प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है ना। क्योंकि बचपन से हमारी जो बायोलॉजिकल ग्रू अप हुई है, जो हम लोग बड़े हुए हैं, इसी मेमोरी के साथ बड़े हुए हैं। कैसे मेमोरी के साथ बड़े हुए हैं कि जब भी हमें कुछ मिलता था, जब बच्चे आप होते हैं, जैसे बच्चे को आप चॉकलेट दो तो उस समय बहुत खुश होते हैं, तो उस समय 2 एनर्जी काम कर रही होती है, एक लेने की और एक देने की। तो जब आप बच्चे को चॉकलेट देते हो तो बच्चे के फेस पे जो स्माइल आती है, वो आपको एक अच्छा फील देता है ना। इसीलिए आप देखोगे जब पापा घर पे आते हैं और वो अपने बेटे के लिए या बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं या चॉकलेट लेके आते हैं, तो जो उस वक्त की स्माइल होती है, वो स्माइल करोड़ों अरबों रुपए से ज़्यादा कॉस्टली होती है। उस स्माइल देखने के लिए आप बहुत बेचैन होते हो, आपको अच्छा लगता है। तो ये एक सिंपल सा एक्ट आपकी पूरी डीएनए में शिफ्ट हो जाती है, आपके पूरे हार्मोन में शिफ्ट हो जाता है, आपके पूरे जीन्स में शिफ्ट हो जाती है, आपके पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाती है। व्हेन यू गिव समथिंग, व्हेन यू सी द हैप्पीनेस इन द फेस ऑफ द रिसीवर, इट शिफ्ट्स इन यू and it's changed the complete biological structure in happiness experience. Your body produce the happiness chemical, you know. तो हम जब देते हैं तो हम लेते हैं क्या? हैप्पीनेस जो दिखता नहीं है, इनविजिबल हैप्पीनेस, इनविजिबल पीस, इनविजिबल सुकून, इनविजिबल शांति। और जो लोग आप फील करेंगे, जो लोग देने में बिलीव नहीं करते हैं, देने के पहले बहुत सारी मैथ कैलकुलेट करते हैं, क्या किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके बाद फिर फाइनली नहीं दिए, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में प्लास्टिक जैसी खुशी होगी, प्लास्टिक जैसी खूबसूरत होगी। वो भले आपको खुश दिखेंगे, भले आपको वो डेकोरेटेड होम, डेकोरेटेड स्माइल, डेकोरेटेड
पर्सनालिटी दिखेंगी, लेकिन इंटरनली सुकून और शांति आप वहाँ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो देने की जो नेचुरल फीलिंग आ रही थी उसको किसी न किसी मुद्दे से, किसी न किसी चीज से वो ब्लॉक्ड हो गई एनर्जी। और जैसे ही एनर्जी ब्लॉक हुई तो फिर वहां पे प्लास्टिक क्रिएट होनी शुरू होती है, ड्राई एनर्जी शुरू होती है। तो सेवा इज द फर्स्ट थिंग जिससे हम अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आते हैं और लोग पूछते हैं कि सेवा इन द सेंस ऑफ व्हाट। अगर सपोज आई डोंट हैव मनी, then how can I do a seva? How can I do something for the needy people? तो इसका आंसर ये है कि हर चीज पैसे से नहीं रिलेट की जा सकती है। सपोज आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं हेल्प करना, तो बहुत सारी वे हैं जिसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, है ना। उनकी कॉन्फिडेंस को आप डेवलप कर सकते हो, आप फोन कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप उनके होप को बढ़ा सकते हो, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प कर रही है उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सकते हो, उनको बूस्ट कर सकते हो, उनके काम को प्रमोट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप उनके राइटिंग्स उनके बारे में लिख के शेयर कर सकते हो। आप किसी ना किसी वे से इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हो कि आई एम विथ यू। तो ये जो गिविंग है ना, ये पैसे से भी ज्यादा बड़ी गिविंग है। आप पैसे तो दे के आप अपने हाथ को कर सकते हो कि मैंने दिया है, बट ये जो इमोशनल गिविंग होती है, उस गिविंग को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो, पैसों से नहीं ले सकते हो, है ना। तो फर्स्ट इज सेवा। एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, टू जस्ट बर्नआउट करने के लिए, द फर्स्ट स्टेप इज सेवा। द सेकेंड इज सुमिरन। सुमिरन मीन्स टू नो द सोर्स, टू रिमेंबर द सोर्स। इस पूरे सर्कमस्टांसेस में हु इज द सोर्स, हु इज द सोर्स ऑफ योर्स। आपका सोर्स क्या है, वेयर इज योर सोर्स, आप कहां से आए हैं। द सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी मीन्स आप अपने बारे में अपने सेल्फ से पूछते हैं, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। तो जब आप ये चीज सोचते हैं तो आप धीरे 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 सोर्स तक पहुंचते हैं। सोर्स आपको उस साइलेंस और स्टिलनेस को एक्सपीरियंस कराता है, और फिर फाइनली आप शून्यता की गोद में समा जाते हैं, आप शून्यता में विलीन हो जाते हैं, आप शून्यता में मर्ज हो जाते हैं। तो है क्या सुमिरन, सेवा, सुमिरन। सुमिरन मीन्स memorizing who you really are, and the satsang. सत्संग मीन्स किस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। आपके सेम माइंडसेट के लोग आपके आसपास हैं कि नहीं है। अगर आपके नेचर से माइंडसेट के लोगों के साथ अगर आपकी सराउंडिंग्स है, आप उनके साथ उठते बैठते हो, नहीं आप कम से कम कनेक्शन में हो, आप उनसे बात करते हो या उन लोगों के एसोसिएशन में रहते हो, तो फाइनली आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम करते हो, एंजाइटी को ओवरकम करते हो। और ये चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं से स्ट्रेस को पोस रहे हो मतलब आप उसको डिपॉजिट करके बैंक में आप उसको सिक्योर्ड रख रहे हो विदिन। और विदिन जब सिक्योर रखोगे तो एक दिन उसमें से बदबू आनी शुरू होगी और वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेगा, है ना। तो मेडिटेशन में सबसे पहला चीज जो हम इन तीन चीजों को फॉलो करते हैं, सेवा, सुमिरन एंड सत्संग, ये तीन चीज को जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो वो एक्नॉलेजिंग हमें हमारे हायर सेल्फ, हायर सोर्स से हमें कनेक्ट कराती है। हम फिर मर्ज होना शुरू होते हैं, हम उसमें जुड़ना शुरू होते हैं, है ना।
मेरे ख्याल से ये एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये भजन सुनाना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर हम ध्यान में आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस भजन में मुझे जहाँ तक लगता है कि एक एक शब्द को आप सुने, एक एक फीलिंग को आप सुने, और उसके बाद लगे यहाँ राम का मतलब, जो राम राम बोला गया इस मंत्र में, उस राम का मतलब है हमारा नाभि चक्र, जिसका बीज मंत्र है राम, जहां से हम शुरू हुए है ना। तो राम जी का जो मंत्र है, नाम है, वो राम का मतलब वही है ना। सुनिए इस भजन को। राम 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 नाम रट रे भव के फंद करम बंद पल में जाए कट रे राम 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 राम। कुछ न संग लेके आए, कुछ न संग जाना, दूर का सफर है सिर पे, बोझ क्यों बढ़ाना, मत बिखर इधर उधर, तू एक जगह सिमटी रे राम 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 राम। राम को बिसार के फिरे है मारा मारा, तेरे हाथ ना ओ राम, हाथ है किनारा, राम की शरण में आ, चरण से जा लिपटी रे राम 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 रट रे भव के फंद करम बंद पल में जाए कट रे राम 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 राम। इस कीर्तन में, इस भजन में एक एक शब्द को आप फिर से सुनने की कोशिश करना। जो लोग भी अभी तक भटके हुए हैं, अभी तक उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, जीवन को अपने दम पे जीना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपके पूरे अस्तित्व, आपके पूरे जीवन के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है, और वो सूक्ष्म शक्ति ही पूरे जीवन को चला रही है। राम 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 रटिए, ये जो भजन है मुकेश जी का गाया हुआ, इस राम में जो नाम है, ठीक है मैथोलॉजिकली आप श्री राम जी से जोड़ें, लेकिन यौगिक लेवल पे जब आप इसे सुनेंगे तो राम हमारे नाभि चक्र का बीज मंत्र है। हमारा जो मूलाधार है, मूलाधार का नाम है, जो बीज मंत्र है वो है लाम, और फिर स्वाधिष्ठान का वो है वाम, और जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो उसका बीज मंत्र है राम, RAM राम।
तो जब राम राम आप करते हैं तो आप जाने अनजाने में अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं, फिजिकल सोर्स। फिजिकल सोर्स क्या है? आपकी नाभि से ही आपकी उत्पत्ति हुई है ना। आपका सबसे पहले यही सोर्स रहा है पूरे अस्तित्व को की गठन में, जब कंस्ट्रक्ट आप होते हैं, है ना। तो एक तो फिजिकल प्लस नॉन फिजिकल सोर्स, है ना। और इसमें कहा ही गया है कि आप क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाएंगे। आप कितना आप बटोर रहे हैं, जितना आप बटोरेंगे उतना भार होगा आपके ऊपर। और इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो फाइनली आपको उनकी प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये बहुत बड़ा एक दिल को छूने वाला एक भजन है, जिसको आपको सुनना चाहिए बराबर। हमने तो अपने ग्रुप में भी डाला है, इसको आप देखें, सुने और सुन सुन के सोएं। आज इसको सोएंगे, सुन के सोएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आइए हम लोग ध्यान करते हैं। सब लोग अपनी जगह पे जस्ट सिट कंफर्टेबली वेर एवर यू आर एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। और अपने चेतना में, अपनी अवेयरनेस में, बैकग्राउंड में ये भजन को आप सुने। आपके सर के पीछे का भाग, कान के पीछे का भाग, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उस ग्लैंड के पास ये मंत्र बज रही है और आप सुन रहे हैं। Simply you are listening the sound of this bhajan. Just a minute. लंबी सांस और धीरे से छोड़ना। अगेन लंबी सांस और रिलैक्सेशन के साथ अपनी सांसों को देखना। आप देखेंगे कि जब भी ध्यान की बात होती है तो ध्यान की बात में हम सबसे पहले शुरुआत सांसों से देखने से शुरू करते हैं। अपने आप में सिमटने का सबसे पहला स्टेप आंखें बंद और मन की आंखों से सांसों को देखना प्रारंभ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अपने घर के, अपने स्वयं के अंदर जाने की फर्स्ट प्रक्रिया, फर्स्ट स्टेप। वी आर क्लोजिंग आवर आईज, closed our eyes, and finally through the eye of mind, through the eye of awareness, observing the breath. मन की आंखों से, through the eye of mind, through the eye of awareness, through the eye of feeling, through the eye of consciousness, through the eye of peace, through the eye of restlessness. Just we are engaged and occupied within self and observing our awareness
and the breathing. धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग ढीला, रिलैक्स, अनकंट्रोल्ड, शिथिल और शांत। अपने शरीर का जहां भी आपके शरीर में रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं, उसे तुरंत रिलैक्स करें। अपनी अवेयरनेस से अपने पूरे शरीर की यात्रा करें और जिस भी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ और रिलैक्स एंड स्पेस की ज़रूरत है, तो आप उसे रिलैक्स, सुकून और शांति की तरह शिथिल और शून्यता को महसूस करें। ऐसा करने से आपका पूरा शरीर एक जैविक सामान की तरह सिर्फ रखा हुआ महसूस होगा। जैविक सामान के अंदर एक धड़कन की गति मात्र भर है और पूरा जैविक शरीर स्थिर, शून्य और समर्पित अपनी अवेयरनेस में। जितना आप रिलैक्स, शांति, सुकून, स्थिर, जितनी गहराई में आप चले जाएंगे, आप अपने क्लोजर टू योर रियल एड्रेस आ जाएंगे। अपने मूल घर के बिल्कुल द्वार पे खड़े हो जाएंगे और एक स्टेप आपने और आगे बढ़ाई एंड नाउ यू आर एट होम।
कल बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। कल हम लोग फिर से इसी वक्त अपने सूक्ष्म शरीर में समा जाएंगे। पूर्णिमा के दिन ध्यान करना अति उत्तम माना गया है। कल के ध्यान में हमारी मन मस्तिष्क में चल रही दुविधा और शांत होती है अगर हम ध्यान करते हैं तो। इसी स्थिति में जितनी देर तक आप रह सकें आप जरूर रहें। साथ ही अपने शरीर को प्रणाम करते हुए सोते वक्त धीरे से इस वाले भजन को सुन के योग निद्रा में समा जाएं। ओम नमः शिवाय।